Hello everybody, welcome back to English classes. Move on to page number 50. Today we are going to take up the Browning version written by Terence Rattigan. Okay, the Browning version written by Terence Rattigan. In addition to this, I request you people to keep your notebooks and pens with you so that you can put down the important points as we come across them. Okay, I think we shall start. We are going to talk about the Browning version written by Terence Rattigan. Let's first collect some information about the author, Terence Rattigan. Terence Rattigan is one of the most known of Britain dramatist as well as screenwriter. जो हमारे author हैं ब्राउनिंग वर्जन के टेरेंस रेटिगन ये एक ब्रिटेन ड्रामेटिस्ट हैं एज वेल एज स्क्रीन राइटर हैं. He was born on 11th of June 1911. 10th of June 1911 को पैदा हुए हैं ट्रांस रेटिगन लंदन यूनाइटेड किंगडम में एंड ही डाइड ऑन 30th of November 1977. 30th of November 1977 को वो इस दुनिया से चले गए. ओके, अब जो ये चैप्टर यहाँ पे दिया गया है द ब्राउनिंग वर्जन, असल में ये एक प्ले है टेरेंस रेटिगन का जिसे बाद में प्रोड्यूस किया गया एज ए मूवी भी. The Browning version is a play written by Terence Rattigan which was later on produced as a movie as well. Now, the chapter titled The Browning version is not the whole play. ये जो chapter यहाँ पे दिया गया है The Browning version ये पूरा play नहीं है but rather an excerpt taken from the Browning version. बल्कि ये एक हिस्सा है, एक टुकड़ा है जो लिया गया है Browning version में से, Terence Rattigan के लिखे हुए. तो let's start. Let's proceed. Notes these expressions in the text, infer their meaning from the context. सबसे पहले यहाँ पे कुछ expressions दी गई हैं और कहा गया है कि आप इन्हें देखो और इनकी meaning को आप context यानी इस text में से ढूंढो. तो let me read out these expressions for you, words and expressions for you. Remove, captain, sadist, slackers, got carried away, shriveled up, muck and cut. These are the expressions which you will come across while going through this text. And you will have to put down the meaning of these expressions or words. ये जो वर्ड्स एक्सप्रेशंस यहाँ पे दिए गए हैं आपको ये देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में और आपके लिए अच्छा होगा कि आप इन पॉइंट्स की मीनिंग, इन एक्सप्रेशंस की मीनिंग नोट करते चलो साथ साथ में. ओके, लेट्स स्टार्ट. This is an excerpt from the Browning version. The scene is set in a school. Frank is young and Cracker Harris middle-aged. Both are masters. Taplu is a boy of 16 who has come in to do extra work for Cracker Harris. But the latter has not yet arrived and Frank finds Taplu waiting. Okay, तो ये प्ले जो है ये कैसे स्टार्ट होता है, कहता है दिस इज एन एक्सेप्ट, ये एक टुकड़ा है फ्रॉम द ब्राउनिंग वर्जन, लिया गया ब्राउनिंग वर्जन में से. द सीन इज सेट इन स्कूल. इस प्ले को कहाँ पे दिखाया जा रहा है, प्ले किया जा रहा है. सीन क्या है, सीन इसे एक स्कूल में प्ले किया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है, इनेक्ट किया जा रहा है इस प्ले को. तो कहता है कि इसका सीन क्या है, एक स्कूल में. फ्रैंक इज यंग एंड क्रॉकर हैरिस मिडिल एज्ड. यहाँ पे दो करेक्टर्स के नाम हम इस लाइन में पढ़ रहे हैं. फ्रैंक इज यंग, फ्रैंक यंग है एंड क्रॉकर हैरिस जो है वो मिडिल एज्ड है. बोथ आर मास्टर्स, ये लेकिन ये दोनों एक स्कूल में मास्टर्स हैं, टीचर हैं. टैपलू इज अ बॉय ऑफ 16. टैपलू एक 16 साल का लड़का है. हु हैज़ कम इन टू डू एक्स्ट्रा वर्क, जो आया है एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए फॉर क्रॉकर हैरिस के लिए. सो टैपलू, हु इज टैपलू, ही इज अ बॉय ऑफ 16 years old who has come to the school. वो क्यों आया है स्कूल? To do extra work for home for one of his masters named Crocker Harris. Okay, but the letter has not yet arrived. But the fact remains that although Taplu is waiting over there, Taplu वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, but the letter that is Crocker Harris, जो Crocker Harris है, has not yet arrived, वो अभी नहीं पहुँचे हैं. And Frank finds Taplu waiting. और फ्रैंक पाता है टैपलू को इंतज़ार करते हुए. देन व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, इसके बाद हमारा प्ले स्टार्ट होता है. कैसे स्टार्ट होता है, कैसे उनके बीच में बातचीत होती है, कैसे आगे चलता है ये प्ले, लेट्स सी. फ्रैंक स्पीकिंग, डू आई नो यू. फ्रैंक कहता है डू आई नो यू, क्या मैं आपको जानता हूँ. नाउ टैपलू रिप्लाइज, टैपलू जवाब देता है. क्या कहता है टैपलू नो सर, नहीं सर, आप मुझे नहीं जानते हो. फ्रैंक एक और सवाल लेके आता है. व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है.
एंड टैप्लू, टैप्लू जवाब देता है टैप्लू, मेरा नाम टैप्लू है। फ्रैंक, टैप्लू, टैप्लू कौन टैप्लू, एक्सक्लेमेटरी मार्क इसके बाद में है, मींस ये जो फ्रैंक है यहाँ पे, ये जो एक यंग टीचर है, ये एक एक्सप्रेशन देता है कि मैं नहीं जानता, नो नहीं, आई नॉट, मैं तो नहीं जानता, कौन टैप्लू, यू आर नॉट ए साइंटिस्ट आई गैदर, आप नहीं हो एक साइंटिस्ट, आई गैदर मींस आई गेस, आई कैन से यू आर नॉट ए साइंटिस्ट, तुम एक साइंटिस्ट नहीं हो। नाउ व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड साइंटिस्ट हियर, यहाँ पे वर्ड साइंटिस्ट की मीनिंग क्या है, इट मीन्स फ्रैंक कहना चाहता है कि आप एक साइंस स्टूडेंट नहीं हो, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो टैप्लू जवाब देता है नो सर, नहीं सर, आई एम स्टिल इन लोअर फिफ्थ, मैं आज भी लोअर फिफ्थ में पढ़ता हूँ, आई कैन नॉट स्पेशलाइज अंटिल नेक्स्ट टर्म, दैट्स टू से इफ आई हैव गॉट माई रिमूव ऑल राइट। टैप्लू जवाब देता है नो सर, नहीं सर, आई एम स्टिल इन द लोअर फिफ्थ, मैं अब भी लोअर फिफ्थ में पढ़ता हूँ। लोअर फिफ्थ क्या है, ब्रिटेन में क्लासेस जो है एक मेथड होता है जिसकी बेसिस पे ये क्लासेस जो है तकसीम की जाती हैं, क्लासीफाई किया जाता है स्टूडेंट्स को, और लोअर फिफ्थ आप समझो कि हाई स्कूल लेवल है, जहाँ पे 13 से 16 ईयर ओल्ड जो स्टूडेंट होते हैं उनकी पढ़ाई होती है। इसके बाद वो सेकेंडरी लेवल पे जाते हैं जहाँ पे उन्हें अपनी स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं। सो कहता है आई एम स्टिल इन द लोअर फिफ्थ, में आज भी लोअर फिफ्थ में पढ़ता हूँ। आई कैन नॉट स्पेशलाइज, मैं स्पेशलाइज नहीं कर सकता, यानी मैं कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं ले सकता, अनटिल नेक्स्ट टर्म, अगली टर्म तक, यानी अगले सेशन तक, जब मेरी ये टर्म, मेरी ये क्लास ख़त्म ना हो तब तक। दैट इज टू से, मैं ऐसा कह सकता हूँ, इफ़ आई हैव गॉट, दैट इज टू से मीन्स दैट्स ऑल आई हैव टू से, दैट्स ऑल आई कैन से, यही है जो कुछ मैं कह सकता हूँ। इफ़ आई हैव गॉट माई रिमूव ऑल राइट, सिर्फ अगर, अगर मेरा जो रिमूव है वो बिल्कुल सही सही मिलता है, रिमूव मीन्स रिजल्ट, रिमूव हियर मीन्स रिजल्ट, तो रिमूव का मतलब है रिजल्ट। सो टैप्लू कहता है कि मैं अगले टर्म तक स्पेशलाइजेशन नहीं ले सकता, यानी मैं कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं ले सकता, जैसे कि मैं साइंस नहीं ले सकता। आपने कहा कि मैं एक साइंस स्टूडेंट नहीं हूँ, बिल्कुल मैं एक साइंस स्टूडेंट नहीं हूँ क्योंकि मैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं ले सकता नेक्स्ट टर्म तक, ऐसा मैं कह सकता हूँ इफ़ आई हैव गॉट माई रिमूव ऑल राइट, हाँ मैं ले सकता हूँ, शर्त क्या है, इफ़ आई हैव गॉट माई रिमूव ऑल राइट, अगली टर्म के बाद अगर मेरा रिमूव, मेरा रिजल्ट सही सही हो, यानी अगर मैं अपने एग्जाम्स पास करता हूँ। फ्रैंक, डोंट यू नो, क्या आपको नहीं पता, इफ़ यू हैव गॉट योर रिमूव, कि क्या आपको रिजल्ट मिला है। टैप्लू जवाब देता है नो सर, नहीं सर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस डजंट टेल अस रिजल्ट्स, मिस्टर क्रॉकर हैरिस हमें रिजल्ट्स नहीं बोलते हैं, लाइक द अदर मास्टर्स, बाकी मास्टर्स की तरह, यानी जैसे बाकी में मास्टर्स इमिडिएटली आफ्टर द एग्जाम्स आर एट द एंड ऑफ द टर्म हमें रिजल्ट्स बोलते हैं, मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो हैं डज नॉट टेल अस द रिजल्ट्स, वो हमें रिजल्ट्स नहीं बोलते हैं लाइक द अदर मास्टर्स, बाकी मास्टर्स की तरह। इसके बाद फ्रैंक कहता है वाई नॉट, क्यों नहीं बोलते वो, डॉक्टर हैरिस आपको रिजल्ट क्यों नहीं बोलते बाकियों की तरह। तो टैप्लू जवाब देता है वेल यू नो व्हाट ही इज़ लाइक सर, वेल हाँ, यू नो आप तो जानते ही हो, व्हाट ही इज़ लाइक वो कैसा है सर, फ्रैंक से कहता है कि सर आप तो जानते ही हो कि वो कैसे हैं, यानी मिस्टर क्रॉकर हैरिस कैसे हैं। फ्रैंक कहता है आई बिलीव देयर इज़ अ रूल, मुझे लगता है कि एक रूल है, दैट फॉर्म रिजल्ट शुड ओनली बी अनाउंस्ड, जिस सूरत में रिजल्ट्स को सिर्फ और सिर्फ बयान किया जाना चाहिए, यानी बता देना चाहिए, डिक्लेयर कर देना चाहिए बाय द हेड मास्टर, सिर्फ हेड मास्टर की तरफ से, ऑन द लास्ट डे ऑफ द टर्म, वो भी एक टर्म यानी एक सेशन पे के लास्ट डे पे, आखिरी डे पे। तो टैप्लू जवाब देता है यस, हाँ वो तो ठीक है, बट हु एल्स पेज अटेंशन टू इट, लेकिन और कौन इसकी फिक्र करता है, एक्सेप्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस, सिवाय मिस्टर क्रॉकर हैरिस के। यानी टैप्लू कहता है आप ठीक कह रहे हो कि रिजल्ट्स को आखिरी दिन पे डिक्लेयर कर देना चाहिए, लेकिन बट हु एल्स पेज अटेंशन टू इट मीन्स हु एल्स केयर्स अबाउट इट, और किसको इस बात की चिंता है, और कौन इसकी तरफ ध्यान देता है, एक्सेप्ट होम, एक्सेप्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस। देन फ्रैंक सेज आई डोंट, मैं तो फिक्र नहीं करता, मैं तो इस बात की चिंता नहीं करता जैसा आपने कहा, आई एडमिट मैं मानता हूँ, बट देयर इज नो, दैट्स नो क्राइटेरियन, लेकिन दैट्स नो प्रिंसिपल, दैट्स नो फंडामेंटल, दैट्स नो रूल, ये कोई क्राइटेरियन नहीं है। सो यू हैव गॉट टू वेट, इस तरह आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, अनटिल टुमारो, कल तक का, टू नो योर फेट, अपनी किस्मत जानने के लिए, टू नो योर फेट मीन्स टू नो योर रिजल्ट, अपना रिजल्ट जानने के लिए। हैव यू, क्या आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कल तक का, फ्रैंक पूछते हैं टैप्लू से। अभी अभी खुद कहा कि आपको इस तरह से, क्योंकि क्रॉकर है इस रिजल्ट बताएंगे नहीं, तो आपको तो कल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर टैप्लू से पूछता है क्या आपको कल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा।
तो इसके बाद टेप्लू जवाब देता है यस, हाँ मुझे कल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। यस सर, हाँ सर कल तक का इंतज़ार तो करना पड़ेगा। फिर फ्रैंक कहते हैं सपोजिंग, फ़र्ज़ करो, टेक इट फॉर एग्जांपल, ऐसा समझो आप, फ़र्ज़ करो द आंसर इज़ फेवरेबल, कि जो आंसर होगा, जवाब होगा, वो आपके हक में होगा। यानी फ्रैंक पूछते हैं आप ये मान के चलो कि आपका रिजल्ट आपके हक में होगा, यानी अगर आप पास हुए, व्हाट देन, तो आप क्या करोगे। व्हाट देन मीन्स व्हाट आर यू कंसिडरिंग नेक्स्ट, आप क्या सोच रहे हो, इसके बाद आप क्या करने वाले हो। टैपलू जवाब देता है ओह, ओह सर ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, ये तो आम सी बात है। साइंस, मैं तो साइंस ही लूंगा सर, ऑफ कोर्स, बेशक बेशक मैं साइंस ही लूंगा। तो फ्रैंक कहता है सैडली, थोड़ी मायूसी के साथ, यस हाँ साइंस लोगे, वी गेट ऑल द स्लेकर्स, हमें तो मिलते हैं सारे स्लेकर्स, यानी द स्टूडेंट्स दैट एनरोल विद अस, जो हमारे पास आते हैं पढ़ने के लिए, ऑल ऑफ देम हैपन टू बी स्लेकर्स, ये सारे कैसे होते हैं, स्लेकर्स। स्लेकर्स मीन्स दो स्टूडेंट्स हु डू नॉट डू देयर वर्क प्रॉपरली, जो अपना काम प्रॉपरली नहीं करते हैं, हम कह सकते हैं लेथार्जिक लेजी स्टूडेंट्स, काहिल स्टूडेंट। वी गेट ऑल द स्लेकर्स, हमें तो सारे स्लेकर मिलते हैं, कमज़ोर स्टूडेंट मिलते हैं। टैपलू प्रोटेस्टिंगली, टैपलू जवाब देता है लेकिन एतराज़ जताते हुए, एहतजाज करते हुए कहता है आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस, मैं आपकी बात से राज़ी नहीं हूँ कि सारे जो आपको साइंस वाले स्टूडेंट मिलते हैं वो स्लेकर होते हैं। आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस, मैं तो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता हूँ साइंस में। स यानी मैं बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ किस चीज़ को लेके, साइंस को लेके, तो मैं कैसे स्लेकर हो सकता हूँ। फ्रैंक जवाब देता है आर यू, क्या आप वाकई में इंटरेस्टेड हो। आर यू श्योर यू आर इंटरेस्टेड इन साइंस, आर यू, क्या आप पूरी तरह यकीन है आपको कि आप दिलचस्पी रखते हो साइंस में। आई एम नॉट, मुझे तो बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। एटलीस्ट, नॉट एटलीस्ट, नहीं है, एटलीस्ट कम अज कम, इन द साइंस, उस साइंस में, आई हैव टू टीच, जो साइंस मुझे पढ़ाना पड़ता है। तो फ्रैंक जवाब देते हुए टैपलू से कहता है, जब टैपलू ने कहा मैं बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता हूँ साइंस में, तो फ्रैंक कहते हैं क्या आप वाकई में दिलचस्पी रखते हो। मैं तो नहीं रखता हूँ, कम अज कम मैं नहीं रखता हूँ उस साइंस में जो साइंस मुझे पढ़ाना पड़ता है। तो टैपलू जवाब देता है वेल एनीवे सर, चलो कुछ भी हो सर, इट इज़ अ गुड डील, ये है टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, बड़ी हद तक, मोर एक्साइटिंग, ज़्यादा दिलचस्प, देन दिस मक, मक मीन्स ए यूजलेस थिंग। तो कहता है इट इज़ सॉरी गुड डील मोर एक्साइटिंग, ये है टू ए ग्रेटर एक्सटेंट, बड़ी हद तक, मोर एक्साइटिंग, मोर इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प, देन दिस मक, देन दिस यूजलेस थिंग, इस बेकार की चीज़ से, यानी जो साइंस है वो एक बहुत ही ज़्यादा हद तक दिलचस्प चीज़ है इस बेकार की चीज़ के मुकाबले में, इंडिकेटिंग हिज बुक। लेकिन जब वो ये बात बोलता है इस बेकार की चीज़, तब वो एक बुक, एक किताब की तरफ इशारा करता है, एक किताब दिखाता है कि इस बेकार की चीज़ से साइंस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो फ्रैंक कहता है व्हाट इज़ दिस मक, नाउ व्हाट इज़ दिस यूजलेस थिंग, जिसे आप मक कह रहे हो, क्या है ये यूजलेस चीज़, ये क्या है आपके हाथ में, किसे आप यूजलेस चीज़ कह रहे हो। टैपलू जवाब देता है एस्काइल सा, ये एस्काइल से सा, द एगमिमनन, ये एस्काइल से सर, एस्काइल से सर, यानी ये एस्काइल्स का लिखा हुआ है, ये एस्काइल्स की लिखी हुई बुक है। और ये बुक क्या है, ये द एगमिमनन है, ये एक प्ले है जिसका नाम है एगमिमनन। टैपलू कहता है ये जो बेकार सी चीज़ है एस्काइल्स की लिखी हुई है और ये एगमिमनन है, यानी एस्काइल्स का लिखा हुआ एक प्ले है जिसका नाम है द एगमिमनन। तो फ्रैंक कहता है एंड यूर कंसिडर्ड व्यू, और आपका जो माना हुआ नज़रिया है, इज़ दैट, वो ये है कि द एगमिमनन इज़ अ मक, कि ये जो एगमिमनन है ये एक बेकार सी चीज़ है, इसे पढ़ने में मज़ा नहीं है, ये बेकार है। तो टैपलू जवाब देता है वेल, हाँ, नो सर, नहीं सर, हाँ मैंने ऐसा नहीं कहा सर, आई डोंट थिंक द प्ले इज़ अ मक, मुझे नहीं लगता कि ये जो प्ले है ये एक बेकार चीज़ है। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल नहीं। आई सपोज, मैं मानता हूँ, इन ए वे मीन्स इन अ फैशन, मैं मानता हूँ एक तरह से, इट इज़ रादर ए गुड प्लॉट, कि ये जो प्ले है ये है इसके बरक्स, जो मैंने कहा इसके बरक्स ये है एक गुड प्लॉट, एक बहुत ही अच्छा प्लॉट। अब प्लॉट क्या होता है, एक प्ले में जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है, जो बिल्डिंग, आई कैन से द मेन आइडिया, जो मेन आइडिया होता है जिसके इर्द गिर्द पूरा प्ले रिवॉल्व होता है, उसे प्लॉट कहते हैं। मैं ये मानता हूँ इसके ब्रक्स की एक अच्छा प्लॉट है, रियली वाकई में,
क्या है ये प्लॉट? ए वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड एंड ऑल दैट, एक जो औरत है, एक जो बीवी है, वो अपने हस्बैंड का कत्ल करती है, एंड ऑल दैट वगैरह वगैरह। ये इस प्लॉट सॉरी इस प्ले का प्लॉट है। आई ओनली मेंट, मेरा तो सिर्फ ये मतलब था, द वे इट इज टॉट टू अस, कि जैसे ये हमें पढ़ाया जाता है, जस्ट अ लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स, बहुत सारे जो ग्रीक के अल्फाज हैं, स्ट्रंग टुगेदर, जॉइंट टुगेदर, इंटरवोवन, एंड 50 लाइन्स इफ़ यू गेट देम रॉन्ग, और ऐसी 50 लाइन्स आपको मिलेंगी इफ़ यू गेट देम रॉन्ग, अगर तुम उन्हें समझ ना पाओ। इफ़ यू गेट देम रॉन्ग मीन्स इफ़ यू फेल टू अंडरस्टैंड देम, अगर तुम उन्हें समझने में नाकाम हो गए तो 50 लाइन्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। किन की? ग्रीक वर्ड्स स्ट्रंग टुगेदर, ग्रीक वर्ड्स की, इंटरवोवन आर जॉइंट टुगेदर। Then Frank says, "You sound a little bitter, टैप्लो, तुम थोड़े से कड़वे मिजाज के लग रहे हो टैप्लो, यानी तुम्हारे जो बोलने का अंदाज है वो थोड़ा सा कड़वा लग रहा है टैप्लो।" तो टैप्लो जवाब देता है, मेरा अंदाज कड़वा लग रहा? नो, आई एम रादर सर, मैं तो हूँ ऐसा ही सर, यानी जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं ऐसा ही हूँ, मैं हमेशा ऐसा ही बोलता हूँ, मैं लगता हूँ बोलने में थोड़ा सा कड़वा। तो फ्रैंक कहता है, आप ऐसे क्यों हो, इसकी क्या वजह है? अंदाजा लगाते हुए बोलता है, kept in, you are grounded over here, you are not promoted, you are kept around here, आपको यहाँ पे रखा गया है, आपको प्रमोट नहीं किया गया, आपको जाने की इजाज़त नहीं दी गई आगे, इस वजह से क्या यही वजह है? तो रीज़न का अंदाज़ा लगाते हुए कहता है कि आपके बिटर होने की वजह क्या हो सकती है? kept in, not promoted, कि आपको प्रमोट नहीं किया गया है, आपको जाने नहीं दिया गया। तो टैप्लो कहता है, नो सर, नहीं सर, ये बिल्कुल भी इसकी वजह नहीं है। आई एम नॉट द वन कैप्टन, मैं नहीं हूँ जिसे प्रमोट नहीं किया गया, बल्कि एक्स्ट्रा वर्क, मुझे एक्स्ट्रा वर्क है, मैं एक्स्ट्रा काम करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। फ्रैंक कहता है, एक्स्ट्रा वर्क, आप एक्स्ट्रा काम करने के लिए आए हो ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल, वो भी स्कूल के आखिरी दिन पे? कौन आता है स्कूल के आखिरी दिन पे एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा काम करने के लिए, एक्स्ट्रा पढ़ाई करने के लिए? कौन सा एक्स्ट्रा काम आप आज आपके पास है? तो टैप्लू कहता है, यस सर, एंड आई माइट बी प्लेइंग गॉफ, यस सर, हाँ सर, एंड आई माइट बी प्लेइंग गॉफ, और शायद मैं गॉफ खेल रहा होता। यू वुड थिंक, आप तो सोच रहे होंगे, ही वुड हैव इनफ टू डू, कि इसके पास बहुत कुछ होता करने के लिए, एनीवे किसी भी तरह, हिमसेल्फ खुद के पास, यानी खुद इसके पास बहुत कुछ होता आज करने के लिए। कंसिडरिंग ही इज लिविंग टुमारो फॉर गुड, आप तो ये सोच रहे होते ही इज लिविंग टुमारो, कि कल ये जा रहा है फॉर गुड, अच्छे के लिए, यानी कल ये इस ग्रेड से अगली ग्रेड पे जा रहा है अच्छे के लिए, तो आज तो इसके पास बहुत कुछ होगा करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। बट ओह नो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आई मिस्ड डे लास्ट वीक, आई हैपन टू मिस अ क्लास लास्ट वीक, मेरी एक क्लास मिस हो गई पिछले हफ्ते, व्हेन आई वाज इल, जब मैं बीमार था। सो हियर आई एम, इसलिए मैं यहाँ पहुँचता हूँ। एंड लुक एट द वेदर सर, और ज़रा देखो इस मौसम को भी सर, ज़रा देखो क्या मौसम है। तो टैप्लू ये बताना चाहता है कि आप ज़रा देखो कितना अच्छा मौसम है, मेरे पास तो करने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन बदकिस्मती से मेरी एक क्लास पिछले हफ्ते मिस हो गई जब मैं बीमार था। सो हियर आई एम, इसलिए मैं यहीं पे हूँ, यानी मैं एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए आया हूँ, वो जो एक दिन का काम मिस हो गया था वो पूरा करने के लिए आया हूँ। फ्रैंक फ्रैंक कहता है, बैड लक, बड़ी बदकिस्मती की बात है, इट्स रियली बैड फॉर यू, बुरी बात है आपके लिए कि आपकी एक क्लास मिस हो गई। स्टिल देयर इज़ वन कंफर्ट, लेकिन फिर भी आपके पास एक अच्छी बात है, एक आरामदेह बात है, एक आसाइश की बात है। यू आर प्रीटी वेल सडन, आपको तो पूरा पूरा अब यकीन है, टू गेट योर रिमूव टुमारो, कि कल आपको आपका रिमूव, आपका रिजल्ट मिल जाएगा। फॉर बीइंग ए गुड बॉय, एक अच्छे लड़के की तरह रहने के लिए। इन टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क लेने में, यानी आपको तो अब पूरा यकीन है, अच्छी बात आपके लिए ये है कि आपको तो अब पूरा यकीन होना चाहिए कि कल आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा, अच्छा लड़का बन के रहने के लिए, इस एक्स्ट्रा वर्क के लिए। तो टैप्लू जवाब देता है, वेल हाँ, आई एम नॉट सो श्योर सर, मुझे इतना यकीन नहीं है सर, दैट वुड बी ट्रू, ये बात तो सच हो सकती थी, ऑफ द ऑर्डिनरी मास्टर्स, अगर हम मामूली टीचर्स की बात करें, आम टीचर्स की बात करें। ऑल राइट, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सच हो सकती थी कि मुझे मेरा रिमूव मिल सकता था कल एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए, लेकिन अगर आम मास्टर्स की बात होती, यहाँ पे बात किसकी है? क्रॉकर हैरिस की। दे जस्ट वुडेंट डेयर, वो बिल्कुल भी जुरत नहीं करते, नॉट टू गिव ए चैप, कि वो नहीं देते एक शख्स को ए रिमूव रिजल्ट आफ्टर हिज टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क,
उसके एक्स्ट्रा वर्क करने के बाद। बट दोज सॉर्ट ऑफ रूल्स डू नॉट अप्लाई टू द क्लॉक, बट दोज काइंड ऑफ रूल्स, लेकिन इस तरह के जो कानून हैं, जो उसूल हैं, डोट नॉट अप्लाई टू द क्लॉक, ये अमल में नहीं आते हैं क्लॉक के लिए, यानी मिस्टर क्लॉक के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। मिस्टर क्रॉकर हैरिस, मिस्टर द क्लॉक से मुराद है मिस्टर क्रॉकर हैरिस, यानी किस पे ये अप्लाई नहीं होता है, मिस्टर क्रॉकर हैरिस पे। आई आस्क्ड हिम यस्टरडे, मैंने उससे कल पूछा था, आउटराइट सीधे सीधे, इफ ही हैड गिवन मी अ रिमूव, कि क्या उसने दिया होता मुझे रिमूव, एंड डू यू नो व्हाट ही सेड सर, और आपको पता है क्या उसने कहा मुझसे सर। तो कहता है आई आस्क्ड हिम यस्टरडे आउटराइट, मैंने उससे कल पूछा था साफ साफ, इफ ही हैड गिवन मी अ रिमूव, कि क्या वो मुझे रिमूव दे देता, एंड डू यू नो, और क्या आपको पता है फ्रैंक सर, व्हाट ही सेड, उसने क्या कहा। तो फ्रैंक कहता है नो, नहीं पता है। व्हाट, क्या कहा उसने। टैप्लो, नहीं पता है, क्या कहा उसने। व्हाट, क्या कहा उसने। टैप्लू कहता है imitating a very gentle rather throaty voice. Here what happens is the fact that Taplu imitates his teacher Mr. Crocker Harris and tries to speak in the very particular tone used by his master. तो वो क्या करता है, इमिटेट करता है अपने मास्टर को, क्रॉकर हैरिस को, और एक बहुत ही अच्छी और थोड़ी गले से निकलने वाली आवाज़ में नकल उतारते हुए बोलता है। My dear Taplu, मेरे अजीज टैप्लू, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली वट यू डिजर्व, मैंने आपको दिया है बिल्कुल वही जिसके आप हकदार हो, यानी आपका रिजल्ट मैंने क्या दिया है, आपका रिजल्ट मैंने वही दिया है जिसके आप हकदार हो। नो लेस, ना ही कम, एंड सर्टनली नो मोर, और यकीनन ना ही उससे थोड़ा ज़्यादा। डू यू नो सर, क्या आपको पता है सर, आई थिंक ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन, मुझे लगता है ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन मीन्स ही मे नॉट हैव गिवन मी ऑल द गुड मार्क्स, उसने नहीं दिए होंगे मुझे बहुत अच्छे मार्क्स, रादर ही माइट हैव गिवन मी लेस मार्क्स, उसने दिए होंगे मुझे कम मार्क्स, यानी उसने मुझे बहुत नीचे रखा होगा। नीचे मीन्स ग्रेड में बहुत नीचे रखा होगा। रादर देन अप, ज़्यादा के बजाय, यानी ग्रेड में ऊपर रखने के बजाय उसने मुझे नीचे रखा होगा। फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा काम करने के लिए। आई मीन, मेरा मतलब है द मैन इज़ हार्डली ह्यूमन, वो शख्स तो इंसान है ही नहीं। ही ब्रेक्स ऑफ क्विकली, और वो बहुत जल्द रुकता है, एकदम होश में आ जाता है कि मैंने क्या बोल दिया। फिर सॉरी सर, माफ़ करना सर, हैव आई गॉन टू फार, क्या मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया। फ्रैंक जवाब देते हुए यस, हाँ, मच टू फार, आप बहुत दूर चले गए, आपने ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। तो टैप्लू कहता है सॉरी सर, अफसोस ज़दा हूँ सर, आई गॉट कैरीड अवे, मैं जज्बात में बह गया। आई गॉट कैरीड अवे, गॉट कैरीड अवे मीन्स आई गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई माई फीलिंग्स, मैं अपने जज्बात में बह गया। तो इसके बाद फ्रैंक कहता है एविडेंटली, देखते हुए इस सब को, ही पिक्स अप अ न्यूज़पेपर, वो एक न्यूज़पेपर उठाता है, ओपन्स इट, उसे खोलता है। टैप्लू, टैप्लू कुछ कहना चाहता है वो, लेकिन उसने पूरी बात नहीं कही। तो उसके बाद क्या होता है, लेट्स सी। टैप्लो कहता है यस, हाँ सर, बताओ क्या बताना चाहते हो आप, क्या करना है मुझे। तो फ्रैंक कहता है व्हाट वाज दैट क्रॉकर हैज सेड टू यू, व्हाट वाज दैट, क्या था वो जो क्रॉकर हैरिस सेड टू यू, जो क्रॉकर हैरिस ने आपसे कहा। जस्ट वही जो आप बोल रहे थे, रिपीट इट, ज़रा दोहराओ उसे। वुड यू, क्या आप बता सकते हो वो आपसे क्या कह रहे थे, यानी आपने कहा जब मैंने उससे पूछा तो क्या आपको पता है उसने क्या कहा, वही मैं जानना चाहता हूँ, क्या कहा उसने, आपने बात पूरी नहीं की। तो फिर टैप्लू एक बार फिर imitating again, dear टैप्लू, I have given you exactly what you deserve। तो टैप्लू एक बार फिर इमिटेट करता है, नकल उतारता है क्रॉकर हैरिस की, और कहता है माई डियर टैप्लू, मेरी अजीज टैप्लू, आई हैव गिवन यू, मैंने आपको दिया है एग्जैक्टली वट यू डिजर्व, बिल्कुल वही जिसके आप हकदार हो। नो लेस, ना ही कुछ कम, एंड सर्टनली नो मोर, और यकीनन ना ही उससे कुछ ज़्यादा। फ्रैंक लुकिंग स्वर, फ्रैंक दिखते हैं थोड़े से स्वेत, थोड़े से सख्त दिखते हैं। नॉट इन द लीस्ट लाइक हिम, ये तो बिल्कुल भी उस जैसा नहीं है, यानी जैसे क्रॉकर हैरिस हैं ये उस जैसे बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है। रीड योर नाइस स्काइल्स एंड बी काइट, अब आप अपनी अच्छी खासी स्काइल्स को पढ़ो, जाओ स्काइल्स की लिखी हुई ये प्ले जो आपके पास एगमेम्नन है इसे पढ़ो, एंड बी क्वाइट, और शांत रहो।
Be quiet means maintain silence. Tableau with dislike स्काइल्स टैप्लो ना खुश होते हुए क्या कहता है स्काइल्स स्काइल्स पढ़ूं मैं क्यों पढ़ूं मैं स्काइल्स फ्रैंक कहता है लुक जरा देखो व्हाट टाइम डिड मिस्टर क्रॉकर हैरिस टेल यू टू बी हियर व्हाट टाइम किस वक्त डिड मिस्टर क्रॉकर हैरिस मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने कहा था सॉरी क्रॉकर हैरिस टेल यू कहा था आपसे टू बी हैर यहाँ पहुँचने के लिए यहाँ आने के लिए टैब्लो 6:30 6:30 बजे सर फ्रैंक वेल ही इज 10 मिनट्स लेट हाँ तो तब क्या है ही इज 10 मिनट्स लेट अगर उसने 6:30 बजे आने के लिए कहा था तो वो 10 मिनट लेट हो रहा है वाई डोंट यू कट मीन्स वाई डोंट यू स्केप वाई डोंट यू लीव आप क्यों नहीं चले जाते कट मीन्स लीव स्केप आप क्यों नहीं चले जाते यू कुड स्टिल प्ले गाफ बिफोर लॉकअप आप अब भी पढ़ सकते हो गाफ लॉकअप कैद होने से पहले टैप्लो रियली शॉक्ड बहुत ज़्यादा हैरान होकर जवाब देता है ओह नो ओह कैसे आई कुडेंट कट आई कुड नॉट लीव मैं नहीं जा सकता कट द क्रॉक मैं क्रॉक से बच के कैसे जा सकता हूँ मिस्टर क्रॉकर हैरिस से आई मीन टैप्लू कहता है मेरा मतलब है क्रॉकर हैरिस से बच के आई शुडेंट थिंक इट इज़ ever been done in the whole time he has been here I shouldn't think मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता it has ever been done कि ये कभी किया गया होगा in the whole time पूरे वक्त के दौरान he has been here जब से वो यहाँ पे है यानी मुझे नहीं लगता जब से वो यहाँ पे है तब से कभी ऐसा किया गया होगा कि कोई उससे बच के गया होगा God knows what would happen भगवान ही बेहतर जानता है कि क्या होगा if I did यानी इफ़ आई कट अगर मैं यहाँ से निकल जाऊँ ही वुड प्रोबेबली फॉलो मी होम शायद वो मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आएगा और समथिंग या कुछ ऐसा करेगा फ्रैंक जवाब देता है आई मस्ट एडमिट आई एनवी हिम मुझे ये बात मान लेनी चाहिए आई एनवी हिम कि मैं उससे चलता हूँ द इफेक्ट ही सीम्स टू हैव वो उसका असर जो ही सीम्स टू हैव जो उसका लगता है टू हैव ऑन यू बॉयज कि आप लड़कों पे उसका जो असर है इन द फार्म क्लास में यू ऑल सीम स्कैड टू डेथ ऑफ हिम तुम सब सीम स्कैड टू डेथ ऑफ हिम मीन्स सीम रियली वेरी स्कैड तुम वाकई में उसे बहुत ज़्यादा डरे हुए लगते हो व्हाट डज ही डू आखिर वो ऐसा क्या करता है बीट यू ऑल क्या वो आप सबको मारता है और समथिंग या ऐसा क्या करता है वो टैप्लू जवाब देता है गुड लॉर्ड भगवान भला करे नो बिल्कुल नहीं ही इज़ नॉट ए सैडिस्ट वो बिल्कुल भी सैडिस्ट नहीं है सैडिस्ट मीन्स अ पर्सन हु डिराइव्स प्लेजर फ्रॉम गिविंग अदर्स और इन्फ्लिक्टिंग ऑन अदर्स पनिशमेंट जो दूसरों को सज़ा दे के खुशी महसूस करता हो ही इज़ नॉट ए सैडिस्ट वो बिल्कुल भी एक सैडिस्ट नहीं है इन अदर टर्म्स हम कह सकते हैं सन की वो बिल्कुल भी सन की नहीं है लाइक वन और टू ऑफ द अदर्स जैसे एक दो और लोग हैं यानी जैसे यहाँ पे एक दो और टीचर हैं वो बिल्कुल भी सैडिस्ट नहीं है फ्रैंक आई बेग योर पार्डन मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ मतलब आपने कहा कि जैसे एक दो और लोग हैं क्या आप मेहरबानी करके बताओगे वो कौन है मैं आपसे माजरत खाऊं मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन है टैप्लू जवाब देता है सैडिस्ट सर क्या आपको जानना है कि सैडिस्ट किसे कहता है ए सैडिस्ट सर एक जो सैडिस्ट होता है सर इज समवन हु गेट्स प्लेजर ये एक ऐसा शख्स होता है जिसे खुशी मिलती है आउट ऑफ गिविंग पेन दूसरों को दर्द देके तो टैप्लू डिफाइन करता है कि सैडिस्ट क्या है लेकिन फ्रैंक का सवाल ये नहीं था फ्रैंक का सवाल था आपने कहा एक दो और लोग हैं सैडिस्ट मैं वो जानना चाहता हूँ वो कौन है तो फ्रैंक कहता है इंडीड बेशक मुझे तो पता है ये सैडिस्ट मुझे पता है बट आई थिंक यू वेंट ऑन टू से लेकिन मुझे लगता है आप ये कहने जा रहे थे दैट सम अदर मास्टर्स कि जो कुछ और मास्टर हैं यानी आप ये कहने जा रहे थे शायद कि जो कुछ और मास्टर हैं वो सैडिस्ट हैं टैप्लो जवाब देता है वेल ऑफ कोर्स हाँ बेशक दे आर सर वो तो हैं सर आई वोंट मेंशन नेम्स मैं उनके नाम तो बयान नहीं करूँगा बट यू नो लेकिन आप जानते हो देम एज वेल उन्हें उतने अच्छे से एज आई डू जितने अच्छे से मैं जानता हूँ ऑफ कोर्स बेशक आई नो मोस्ट मास्टर्स मैं जानता हूँ कि अक्सर जो मास्टर होते हैं थिंक उन्हें लगता है वी बॉयज डोंट अंडरस्टैंड अ थिंग कि हम स्टूडेंट्स को शागिर्दों की समझ में एक भी बात नहीं आती है वी डोंट अंडरस्टैंड अ थिंग मीन्स वी अंडरस्टैंड नथिंग उन्हें लगता है हमारी समझ में कुछ भी नहीं आता है बट लेकिन सर यू आर डिफरेंट
तुम उन सबसे अलग हो, तुम उन जैसे बिल्कुल नहीं हो। यू आर यंग, तुम तो काफी जवान हो। वेल, हाँ, कंपैरेटिवली, उनके मुकाबले में। एनीवे, कुछ भी हो। एंड यू आर साइंस, और तुम तो पढ़ाते भी साइंस हो। यू मस्ट नो व्हाट सैडिज्म इज, तुम्हें बिल्कुल पता होना चाहिए सैडिज्म क्या होता है। फ्रैंक, आफ्टर ए पास, कुछ देर रुकने के बाद, गुड लॉर्ड, भगवान भला करे, वट आर आवर स्कूल्स कमिंग टू, हमारे स्कूल क्या बनते जा रहे हैं, हमारे स्कूल दिन ब दिन कैसे होते जा रहे हैं। वट आर आवर स्कूल्स कमिंग टू मीन्स वट आर आवर स्कूल्स टर्निंग इन टू, हमारे स्कूल किस में बदलते जा रहे हैं। टैप लो। एनीवे, एनीवे सर, कुछ भी हो सर, द क्रॉक इजंट सैडिस्ट, लेकिन जो क्रॉक है यानी मिस्टर क्रॉकर हैरिस, वो एक सैडिस्ट नहीं है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, वही है जो मैं कह रहा हूँ। ही वोंट बी, सॉरी, ही वुड नॉट बी सो फ्राइटनिंग, वो बिल्कुल नहीं होता उतना डरावना, इफ ही वर, अगर वो एक सैडिस्ट होता। बिकॉज एटलीस्ट, क्योंकि कम से कम अगर वो सैडिस्ट होता, कम से कम इट वुड शो, वो ये दिखाता, ही हैड सम फीलिंग्स, कि उसमें जज्बात थे। यानी अगर वो सैडिस्ट होता, कम से कम ये वाली फीलिंग तो सामने आती कि दूसरों को दर्द दे के उसे खुशी मिलती है। बट ही हैजंट, लेकिन उसमें तो फीलिंग्स है ही नहीं। ही इज ऑल श्रिवल्ड अप, ही इज ऑल श्रिवल्ड अप, बाय श्रिवल्ड अप वी मीन ही इज फीलिंगलेस, वो बिल्कुल भी बेजज्बा है। इनसाइड, अंदर से, लाइक ए नट, बिल्कुल एक नट की तरह। एंड ही सीम्स टू हेट पीपल टू लाइक हिम, एंड ही सीम्स, और वो लगता है, टू हेट पीपल, और लगता है कि वो लोगों से नफरत करता है, टू लाइक हिम, उससे मोहब्बत करने के लिए, उसे पसंद करने के लिए। यानी ऐसा लगता है कि वो लोगों से इसलिए नफरत करता है कि लोग उसे पसंद करते हैं, यानी लोगों के उसे पसंद करने से की वजह से वो उनसे नफरत करता है। इट इज़ फनी, कितनी मज़ाहिया बात है। दैट, ज़रा देखो, आई डोंट नो एनी अदर मास्टर, मैं नहीं जानता किसी भी और मास्टर को, हु डज नॉट लाइक बीइंग लाइकड, जिसे पसंद ना हो पसंद किए जाना। यानी मैं ऐसे किसी मास्टर को नहीं जानता, हु डज नॉट लाइक, जिसे पसंद ना हो बीइंग लाइकड, और उसे पसंद किए जाना। फ्रैंक कहता है, एंड आई डोंट नो एनी बॉय, और मैं नहीं जानता किसी भी स्टूडेंट को, हु डज नॉट यूज दैट, जो इस्तेमाल नहीं करता इस चीज़ का, फॉर इज ओन पर्पजेज, अपने ही मकासद के लिए, अपने इंटरेस्ट्स के लिए। पर्पजेज मीन्स इंटरेस्टेड, मतलब के लिए। सो कहता है फ्रैंक, मैं तो किसी भी ऐसे स्टूडेंट को नहीं जानता जो इस चीज़ का इस्तेमाल ना करता हो अपने मकसद के लिए। किस चीज़ का? अपने उस्ताद को पसंद करने का, दिखावा करना, बहाना करना, अपने उस्ताद को पसंद करना सिर्फ अपने मतलब के लिए। ठैप लो। वेल, इट इज़ नेचुरल सर, हाँ, ये तो कुदरती बात है सर, हम किसी को पसंद करेंगे तो अपने मतलब के लिए ही करेंगे। बट नॉट विद द क्रॉक, लेकिन ये क्रॉक के साथ नहीं चलता। क्रॉक, फ्रैंक पूरा करते हैं इस शब्द को मिस्टर क्रॉकर हैरिस, मिस्टर क्रॉकर हैरिस के साथ, यानी क्रॉक नहीं, मिस्टर क्रॉकर हैरिस। तो टैपलू कहते हैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस, हाँ, मिस्टर क्रॉकर हैरिस। द फनी थिंग इज दैट, मज़ाहिया बात तो यह है, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, कि इस सब के बावजूद, आई डू रादर लाइक हिम, मैं उसे वाकई में पसंद करता हूँ। आई कैन नॉट हेल्प इट, और मैं इससे खुद को दूर नहीं रख सकता, मैं उसे मदद करता हूँ। आई कैन नॉट हेल्प इट मीन्स आई कैन नॉट स्टॉप लाइकिंग हिम, मैं उसे पसंद करना नहीं छोड़ सकता। एंड समटाइम्स, और कभी कभार, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, ही सीज इट, कि वो इस बात को समझता भी है, एंड दैट सीम्स टू श्रिवल हिम अप इवन मोर, और ये चीज़ लगता है टू श्रिवल हिम अप, मेक हिम फीलिंगलेस, वो उसे और बेजज्बा बनाती है, इवन मोर, इससे भी ज़्यादा, हता कि इससे भी ज़्यादा जितना बेजज्बा वो है। कहता है, मैं समझता हूँ, कभी कभार वो इस बात को समझता है, और दैट सीम्स टू श्रिवल हिम अप, और लगता है उसका ये समझना, दैट सीम्स टू श्रिवल हिम अप, ये चीज़ उसे एंग्री बना देती है, और ज़्यादा, हता कि और ज़्यादा। फ्रैंक, आई एम श्योर यू आर एग्जिजरेटिंग, मुझे पूरा यकीन है, यू आर एग्जिजरेटिंग, कि अब तुम बातों को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो, यानी तुम हर चीज़ को अब बढ़ा बढ़ा के बोल रहे हो, तुम अब अपनी बातें बातों में मिला रहे हो, तुम सब कुछ बढ़ा रहे हो। फ्रैंक कहता है। तो इसके बाद टैपलू क्या जवाब देता है, उसकी हम कुछ देर बाद बात करेंगे, आई मीन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। फिलहाल मैं बैग जाता हूँ, in order to see if we have come across any of these expressions that were given at the top. Yeah, remove means result, captain means not promoted, sadist means a person who derives pleasure from inflicting punishment,
And then slackers means people or students who don't work properly. Got carried away means to get carried by emotions. And shriveled up, feelingless, or getting angered. And muck means useless. And then cut means to leave or to escape. Okay, these were the expressions. ये expressions हैं जो दी गई थी at the top और जिनकी meaning आपको search करनी थी. I have let you know the meaning of these as well. Okay, तो आज हमने पढ़ा I forgot where did we come. Yeah, it was page number 54. Page number 54, line number 1 2 3 4 5. Line number 5. Page number 54, line number 5 पे हमने आज stop किया. यहाँ से आगे हम we will finish it by tomorrow इंशाल्लाह. कल के lecture में हम इसे finish कर देंगे. Okay, now you can leave. See you people tomorrow.